Students, we have discussed average propensity to consume in previous class, and we have discussed the properties of average propensity to consume. Now today we are going to discuss marginal propensity to consume, or MPC. So what is marginal propensity to consume? Marginal propensity to consume means it is the ratio of change in consumption expenditure to change in income over a period of time. So now whenever word marginal comes, it means ratio, means in case of marginal utility, okay, that we have learned in class 11, marginal diminishing utility laws we have discussed. We have also discussed marginal revenue, marginal cost. So in all these cases, we were finding that it was the ratio between two goods. Okay, the changes which were taking place between two goods, and we were deriving the ratio from there. It was the marginal. So now marginal propensity to consume. So here we are going to derive the marginal value of propensity to consume, that is, it is related to consumption. So it is there are two variables, consumption and income. So when we find the ratio between change in consumption to change in income, it is the marginal propensity to consume, or MPC. So MPC equal to, so it is the ratio of change in consumption expenditure to change in income, that is delta Y over a period of time. As you know that change is represented by the sign delta in economics. So delta C means change in consumption expenditure, and delta Y means change in income, because Y represents here income. In economics, in macroeconomics, Y is represented for income. So whenever we write the Y in any formula, you should understand that Y means income here. Similar to that, when we write C, it is for consumption. When we write S, it is for saving. So when we find the ratio of change in consumption to change in income, we get marginal propensity to consume, MPC. तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि इनकम चेंज होने से यदि आपका इनकम में चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ आपका कंजम्पशन में हुआ, या इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि change in consumption when 1 unit change in income takes place. जब इनकम में 1 यूनिट चेंज होता है तो कंजम्पशन में कितना चेंज होता है, तो ये आपको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो मान लो कि यदि इनकम जो 1 यूनिट इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन कितना यूनिट इंक्रीज हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम ₹200 to ₹300 and consumption increases from ₹80 to ₹140, then marginal propensity to consume equal to delta C by delta Y. तो मान लो कि इनकम इंक्रीज हुआ ₹200 से ₹300, तो दोनों के बीच में कितना चेंज हुआ, पहले ₹200 था, अब हो गया ₹300, तो दोनों के बीच में गैप कितना है, ₹100 का. तो चेंज इन Y, डेल्टा Y का वैल्यू कितना हो गया, डेल्टा Y का वैल्यू हो गया आपको ₹100. उसी तरह से कंजम्पशन इंक्रीज कितना हुआ, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ ₹80 से ₹140, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 60 का. तो चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा सी इक्वल टू कितना हो गया, तो डेल्टा सी इक्वल टू हो गया आपको 60 एंड डेल्टा वाई इक्वल टू हो गया आपको कितना, 100. ठीक है, तो अब हम लोग कैसे निकाल लेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फार्मूला से हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं. आपको यहाँ पे आप देखिए कि चेंज इन कंजम्पशन दैट इज 60 डिवाइड बाय चेंज इन इनकम दैट इज 100, सो इट इज 0.6. सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.6. इसका मतलब ये हुआ कि यदि ₹1 यदि इनकम इंक्रीज करेगा तो उसका कंजम्पशन कितना करेगा, वो 0.6 यानी कि 60%. तो यदि 1 यूनिट ऑफ इनकम इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो 60% है वो उसको कंज्यूम कर लेगा,
और जो 40% है वो उसको सेव करके रख लेगा। सो दिस इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। Now we understood the meaning of marginal propensity to consume. Now we will discuss the properties of MPC कि MPC का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो पहला इसका प्रॉपर्टीज़ है कि वैल्यू ऑफ MPC रेंजेज बिटवीन 0 एंड 1। ये याद रखना है कि चूँकि ये प्रोपोर्शन बताता है 1 यूनिट में कितना जो है आपको कंज्यूम किया जा रहा है, ये प्रोपोर्शन बताता है, तो इसका वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में होगा। इसका वैल्यू जो है ना तो 0 से नीचे जाएगा और ना ही 1 से ऊपर जाएगा। 0 एंड 1 के बीच में जो है इसका वैल्यू रहेगा। क्यों नहीं 0 से नीचे जाएगा, इसका भी रीज़न हम जो है आपको बताने जा रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग इज वैल्यू ऑफ MPC रेंजेज बिटवीन 0 एंड 1। इफ इंटायर एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा Y देन MPC इक्वल टू 1। ठीक है, यदि जितना भी एडिशनल इनकम हुआ, जितना भी चेंज इन इनकम हुआ, वो सभी कंजम्पशन पे खर्च कर दिया जाए, यानी कि जो भी इनकम ज़्यादा हुआ वो सभी को कंज्यूम कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा Y मीन्स चेंज इन कंजम्पशन इक्वल टू चेंज इन इनकम। तो इसमें जो है आपको क्या होगा, MPC इक्वल टू 1, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि MPC का फार्मूला क्या होता है, MPC का फार्मूला होता है आपको डेल्टा C बाय डेल्टा Y, और दोनों बराबर है, दोनों का वैल्यू एक ही है। तो ये दोनों का वैल्यू एक ही है तो दोनों कट जाएगा और वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसीलिए जब सभी इनकम को कंजम्पशन पे खर्च कर दिया जाएगा तो डेल्टा C डेल्टा Y इक्वल होगा और MPC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। नाउ नेक्स्ट इज इफ इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड देन डेल्टा C इक्वल टू 0 देन MPC इक्वल टू 0। और यदि सभी इनकम को सेव कर लिया जाएगा, खर्च करेगा ही नहीं, तो डेल्टा C 0 हो जाएगा। और यदि डेल्टा C का वैल्यू 0 हो जाएगा तो डेल्टा C 0 डिवाइड बाई डेल्टा Y तो क्या होगा, आपको 0 ही होगा। तो MPC का वैल्यू जो है वहाँ पे उस केस में कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज MPC ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज मोर देन MPC ऑफ डेवलप कंट्रीज। जो MPC ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जो पुअर कंट्रीज, उसका ज़्यादा होता है in comparison to developed countries, or we can say that MPC of poor is more than MPC of rich, as poor person needs to spend more on the basic needs। जो गरीब होता है उसका जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यदि उसका इनकम चेंज हो रहा है तो उसका जो बेसिक नीड्स है, जो उसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट है घर का, वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा ज़्यादा वो खर्च करेगा। तो जो गरीब आदमी होता है उसके पास यदि पैसा आता है तो ज़्यादा ज़्यादा वो खर्च करता है, वो सेव बचत करके कम रखता है, खर्च ज़्यादा करता है। एंड दिस इज द रीजन दैट पुअर पीपल हैविंग मोर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन कंपेरिजन टू रिच। रिच क्या करता है, धनी क्या करता है, उसके पास ज़्यादा पैसा आता है, उसका जो बेसिक नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाता है, तो जो इनकम आता है उसका ज़्यादातर वो सेव करता है और खर्च कम करता है। So this is about the properties of MPC. Now one thing I told you that why the value of MPC cannot be less than 0। इसका मेन जो रीज़न है कि डेल्टा C जो है, ठीक है, या आप इस तरह से बोल सकते हैं, जो C का जो वैल्यू होता है वो आपको कभी भी आपको 0 से कम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन जो आपको होता है, और ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होता है यानी कि वहाँ पे इनकम यदि 0 है फिर भी कुछ ना कुछ वहाँ पे कंज्यूम आपका हो रहा है। तो इसीलिए MPC का रेंज जो है 0 से लेकर के 1 के बीच में आपको रहेगा। यानी कि इसका मतलब यदि देखिए यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि डेल्टा C, यहाँ पे हम लोग डेल्टा C की बात कर रहे हैं। तो यदि आपका इनकम जो है कुछ भी नहीं हुई, इनकम जो आपको इंक्रीज हुआ ही नहीं, ज़्यादा वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि इनकम आपको 0 चेंज हुआ तो कंजम्पशन क्या हो, कंजम्पशन भी 0 चेंज होगा। तो 0/0 इक्वल टू 0। निगेटिव तो हो नहीं सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनकम जो है निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है, कंजम्पशन आपका निगेटिव में चला जाएगा। कंजम्पशन कभी निगेटिव में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन जो है करेगा ही। यदि आपको इनकम 0 भी है फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेगा, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसीलिए जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो वो नीचे नहीं जाता, ये भी एक मेन रीज़न है। नाउ सी द शेड्यूल। MPC का यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिया हुआ है, पहले इनकम जो है 0 है, कंजम्पशन 50 है, चेंज इन कंजम्पशन कुछ नहीं हो रहा है, चेंज इन इनकम कुछ नहीं हो रहा है, तो MPC के यहाँ वैल्यू कुछ नहीं है। जब इनकम आपको हो गया 50 तो कंजम्पशन हो गया 75, चेंज कितना हुआ कंजम्पशन में, 50 से 75 और 25। इनकम में कितना चेंज हुआ, पहले 0 था 50 हो गया, यानी कि चेंज इन इनकम 50।
तो आपको कैसे निकालेंगे MPC 25 डिवाइड बाय 50, तो ये कितना हो जाएगा आपको 0.5। नेक्स्ट देखिए, जब इनकम आपका 50 से 100 हो गया, कंजम्पशन 75 से 100 हो गया, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना 25 चेंज हुआ। इनकम कितना चेंज हुआ 50 से 100 हुआ, यानी कि 50 चेंज हुआ, तो आपको यहाँ पे 25 यानी कि चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाई चेंज इनकम 0.5। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है 0.05 0.5 सब में आपको आ रहा है यहाँ पे। सो just look have a look on a table, and then we are going to see the diagram of this MPC। अब ये रहा आपका MPC का डायग्राम, इसको आप देख सकते हैं। ये हो गया आपको इनकम कर्व, इसको आप जानते हैं, एग्रीगेट सप्लाई भी इसको बोलते हैं। ये हो गया कंजम्पशन कर्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो आपको कंजम्पशन चेंज हो रहा है यदि आपका इनकम जो है इंक्रीज हो रहा है, इनकम जब आपका चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे C पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो है MPC निकाला गया है। तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन कंजम्पशन। तो यहाँ पे आप जो देखिए कंजम्पशन पहले क्या था 100 था, और इस पॉइंट पे कितना हो गया, इस पॉइंट पे आपको हो गया 150 मान लीजिए, क्योंकि 200 और 100 के बीच में है P1 पॉइंट। तो P1 पॉइंट पे आपका कंजम्पशन कितना चेंज हुआ 50, तो ऊपर में दे दिए 50। इनकम कितना चेंज हो रहा है, इनकम पहले 100 था और इस पॉइंट पे आकर के 200 हो गया, यानी कि 100 आपको इंक्रीज हो रहा है इनकम। तो 50/100 यानी कि 1/2, तो 1/2 इक्वल कितना 0.5 हो गया। तो MPC हो गया 0.5। So this is all about marginal propensity to consume. We have seen the properties of marginal propensity to consume. We have seen the formula, and we discussed the curve also, means how to get the MPC from the curve. So this is all about the MPC, and in next class we will see about the saving function. Okay, average propensity to save, marginal propensity to save, and we will solve some questions. Thank you.